When we talk about transfer pricing provisions which are applicable to which type of SSE. So first of all, the SSE who is carrying out an international transaction with an associated enterprise, and if the transaction is for a price other than arm's length price. So we have I've highlighted three words here. One is international transaction, second is associated enterprise, and third is arm's length price. Now we are going to check the definition of all of them one by one, but to understand in like brief, international transaction is obviously cross-border transactions that we are carrying out transaction with a company or with a person, businessman outside India. It may be supply of goods, it may be supply of services, it may be giving loan, taking loan, it may be uh, providing other kind of facilities. So it may include variety of activities, but obviously it has to be a transaction with an associated enterprise. Now, associated enterprise means in simple words, related party transaction. So if you are dealing with a related party and the transaction is an international transaction, then you have to check whether the transaction is at arm's length price. Now, to put it in simple words, what is arm's length price? Arm's length price is a price which is uh, a price which you will charge to unknown parties or not related parties. So if I'm dealing with an unrelated party, so at which price I will supply the goods or at which rate I will deal with them. So that would be considered as an arm's length price. So for example, if I'm dealing with my brother and if I'm dealing with my friend and if I'm dealing with a third party, so what should happen is I should deal with my brother and my friend at the same price at which I'm dealing with a third party or unknown party. So that is what the transfer pricing provisions are saying. And mainly, all these provisions are applicable only when there is a loss of revenue to income tax department. So department would never ever bother you if there is no loss of revenue to them. So if at all there is loss of tax revenue to them, only in that case they will make the adjustment. Otherwise, these adjustments are not required. Hmm? Now, why the transfer provisions came into picture, I'll just give you an example. Hmm? Now, this is a transaction between two parties, okay, which are not related to each other. Means which are related to each other and which are not related to each other. So out of these three, the first transaction is between Atos Origin India and Atos Origin UK. Huh? So if they decide to sell the product, like if assuming that I'm dealing for a market price, like regular price, then for Atos Origin the cost is 18 lakh and they're supplying the goods at 25 lakhs. So obviously 25 lakh is supply price for Atos Origin India. That would be considered as cost price for Atos Origin UK. Now they are supplying the product for 30 lakh. So for the customer, the cost price will be 30 lakh rupees. Hmm. Now, ideally speaking, for us, the profit would have been 7 lakhs and 30% is the tax rate. So we are applying 30% tax rate, so 2 lakh 10. So net profit which you have earned is 4 lakh 90,000. Hmm. Uh, as against that, Atos Origin UK would have earned profit of 5 lakhs and the tax rate in UK is 20%, so it is 1 lakh. So net profit there is 4 lakh. Now, if you add both of them, the total profit for customer in UK is 12 lakhs. Less taxes will add 3 lakh 10. So the net profit which you have earned is 8 lakh 90,000. All right. Now here, since Atos Origin India and Atos Origin are UK are are related parties, but we are recording the transaction at a regular price. So this is a
in case regular price is charged. Means you are not considering it is a related party, and you're not giving any discount or anything. It is a direct, or you can say, a price which has been considered. Hmm? But now, if you look at the tax rates in India and UK, now if you observe, the tax rate in India is 30%, as against tax rate in UK is 20%. Now, since tax rate in India is quite on a higher side, so there is a possibility between both the parties that they may decide to adjust the profit percentage amongst themselves. Ultimately, Atos Origin India and Atos Origin UK are going to report to their group concern, right? So group concern के लिए मुझे profit figure report करना important है, and group concern जो main company रहेगा उनका, वो क्या देखेगा, group का profit कितना है rather than individual profit कितना है. तो उसके लिए just this is a adjustment in the pricing. So this adjustment is made in the pricing to save taxes by adjusting profit in India. मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ प्राइसिंग में थोड़ा चेंज कर दिया. देखो अल्टीमेटली घर का ही मामला है, ग्रुप कंसर्न है, तो आप मतलब इट्स लाइक यू सेलिंग योर स्पाउस एंड देन स्पाउस इज सेलिंग टू थर्ड पार्टी. तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं, मेरा स्पाउस कितना प्रॉफिट कमाए, या दोनों का प्रॉफिट मिलके द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फैमिली वुड बी कैलकुलेटेड, राइट? तो वैसे ही एटॉस ओरिजिन इंडिया एंड एटॉस ओरिजिन यूके, ये दोनों का अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट हमने देखा एंड दोनों को ऐड कर दिया, तो दैट वुड बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ग्रुप कंसर्न. सो दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न विद. बट अगर मैंने प्राइस के साथ टैंपरिंग किया, दैट मीन्स 25 लाख प्राइस है, लेकिन उसके जगह पे अगर मैंने सिर्फ 20 लाख की प्राइस चार्ज किया, तो क्या होगा? एज यू कैन सी हियर, इफ आई एम चार्जिंग ओनली 20 लाख रुपीज हियर, प्रॉफिट इंडिया का कम होगा, लेकिन इंडिया का टैक्स भी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इट इज चार्ज टू टैक्स एट 30%. एंड यूके का टैक्स, सॉरी यूके का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर को हम लोग 30 लाख चार्ज करने वाले हैं. तो इफ यू लुक एट द फिगर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम इन बोथ द केसेस. दोनों केस में प्रॉफिट का फिगर क्या है, ये सेम ही है. फर्क क्या हुआ, टैक्सेस मेरा कम हो गया. कितने से कम हो गया? अभी देखो, इंडिया का प्रॉफिट मैंने 5 लाख से कम कर दिया, तो 5 लाख का 10% मीन्स 50,000 से मेरा टैक्स सेव हो गया. तो इफ यू ऑब्जर्व, मेरा प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट, वो कितने से बढ़ गया? इट इज इंक्रीज्ड बाय 50,000 only because I adjusted the pricing. I did nothing else. I just adjusted price. That instead of charging UK 25 lakhs, I'll charge them 20 lakhs, and I will save 50,000 as a profit for the group concern. Isn't it a good idea to save taxes? Yes. अभी इस तरीके से कंपनीज, ग्रुप कंपनीज अपना प्रॉफिट एलिमेंट एडजस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं क्या? यस और नो? नो. हाँ, अभी आइडियली कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन डू दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, लेकिन अभी नहीं कर सकते. नो इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस. व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर देयर? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि ऐसा दोनों के बीच में जो प्राइस एडजस्टमेंट्स चलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लाया. And now what department says, that if you are doing this price adjustment, we will increase your income. So what department will do is they will verify all the transactions, and then they will determine the arm's length selling price. Arm's length selling price कितना होना चाहिए बताओ? How much should have been the 25 lakh. कितना? 25 lakhs, correct. And they will compare with the actual selling price,
which is 20 lakhs. तो वो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट इन इनकम कितने से 5 लाख से, and thereby adjustment increase the tax liability by 5 lakh into 30%. So 1,50,000 से वो tax liability increase कर देंगे and accordingly penalty and interest will be applicable on the same. ये ट्रांजैक्शन पे आपको पेनल्टी एंड इंटरेस्ट भी एडिशनली भरना पड़ेगा, तो 1.5 लाख का टैक्स तो आपका जाएगा ही, प्लस आपका इनकम इंक्रीज करके वो क्या बोल देंगे 25 लाख हो जाएगा बोलेंगे, एंड आपका टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख प्लस जो सरचार्ज सेस या पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी है वो ऐड करके आपको टोटल लायबिलिटी चार्ज कर देंगे। अभी मुझे बताओ, आप सिर्फ 50,000 सेव करने के लिए गए, हाँ, एंड 1.5 लाख से ज्यादा मतलब अराउंड 160-170 का टैक्स एक्स्ट्रा भर दिया, तो डज इट मेक सेंस टू डू दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स? नो। हाँ, इसके लिए people will not dare to do these kind of price adjustments when they are dealing with related parties, and therefore the provisions, that is transfer pricing provisions, are there to take care of these kind of price adjustments only when there is a loss of revenue to income tax department. Are you understanding the basics of the transfer pricing now? सर, हाँ, तो टैक्स लैब जो टैक्स पर्सन है, असेसिंग ऑफिसर, दे विल नॉट चार्ज ऑन द प्रॉफिट ऑन द रिवाइज एक्चुअल प्राइस। प्रॉफिट पे ही चार्ज किया ना। नहीं तो 5 lakhs पे डायरेक्ट 30% कर दिया, 5 lakhs के बाद वो प्रॉफिट निकाल के फिर माइनस करके वो सब प्रॉफिट ही 5 लाख है ना। तो यहाँ पे 50,000 और ये 150 के साथ डिफरेंस आ गया। सॉरी, नहीं, ये 50,000 यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और वहाँ यहाँ पे सीधा 150 का टैक्स लायबिलिटी कैसे बढ़ गया? ओके, सी जैसे इंडिया का टैक्स कम हो गया, वैसे यूके का टैक्स बढ़ भी गया ना। ओके, वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया वो हिसाब 5 से। लाख हाँ पे हाँ वो हाँ, 20% से टैक्स वैसे भी भर बराबर रहे थे। सर, हाँ हाँ, यहाँ पर सो बराबर। 5 लाख पे 20% दैट इज 1 लाख। करेक्ट करेक्ट, गॉट इट सर। तो इसके लिए वो डिफरेंस दिख रहा है, समझा? अभी सेकेंड पॉइंट इज, अगर इंडिया का इनकम बढ़ा दिया तो कैन यूके एटॉस ओरिजिन यूके से नाउ माय कॉस्ट प्राइस इज 25 लाख एंड नॉट 20 लाख, कैन दे से दैट? नो नो नो, हाँ, बिकॉज उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, दे हैव पेड ओनली 20 लाख, दे हैवंट पेड 25 lakhs, राइट? सो Atos Origin UK has paid 20 lakhs, so they will have to consider their profit as 10 lakhs only. Even though we have made price adjustment of 5 lakh, still Atos Origin UK you will have to consider the purchase price as 20 and selling price is 30 lakh. So naturally इधर जितना income adjustment किया है 25 minus 20, तो ये 5 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 1,50,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। नाउ थिंक केयरफुली एंड टेल मी वेदर जैसे टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इंडिया में है वैसे यूके में भी रहेगा, मतलब यूके में भी है बट यूके में भी रहेगा, करेक्ट? यस सर। Will tax authorities of UK will do price adjustments in UK? Yes. No, no, they will not, because here the profit is on higher side. Yes, Atos Origin UK का प्रॉफिट एक्चुअली 5 लाख होना चाहिए था, उन्होंने 10 लाख दिखाया, तो डिपार्टमेंट उधर का ऐसे नहीं बोलेगा आपने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया कम करो, आपका प्रॉफिट 5 लाख ही है। नो, हाँ, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग का मेन रूल क्या है, इफ देयर इज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू टैक्स डिपार्टमेंट देन ओनली द एक्शन वुड बी टेकन, otherwise the action would not be initiated by the income tax department. Are you getting this? हाँ? तो इसके लिए
लॉस ऑफ रेवेन्यू है कि नहीं है वो आपको फर्स्ट पॉइंट चेक करना है। तो उसके लिए एटॉस ओरिजिन यूके को तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कुछ नहीं होगा। बट अगर यूके ने एक्स्ट्रा लॉस क्लेम कर दिया तो दैट वुड बी एडजस्टेड बाय देयर टैक्स डिपार्टमेंट। इन दैट केस इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट वुड नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन कि कल जाके मैंने इधर 25 लाख के जगह पे 27 लाख का सेलिंग प्राइस दिखाया एंड उनके लिए सेम प्राइस हो गया। तो मैंने इधर 27 कर दिया, सॉरी मैंने इधर 27 लाख कर दिया। इन दैट केस Indian tax department will not take any objection, right? Yes, sir. Because there is a addition of profit, तो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। उस केस में यूके टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा यू हैव इंक्रीज्ड योर कॉस्ट बाय 2 लाख, तो उसको डिसअलाउ कर देंगे। हाँ, दैट मींस इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ साइड्स, सेलिंग साइड आल्सो एंड परचेसिंग साइड आल्सो। बट both cases you have to check there is a loss of revenue to the respective tax authorities, then only the price adjustment is required. Understood basics of transfer pricing? सर ये आर्म्स लेंथ प्राइस जो है that can be considered as the current market price for that product or the supplies. Yes, you can say that current market price which I am dealing with an unrelated party. Unrelated party के साथ मैं कौन से price पे deal कर रहा हूँ, you can say that is the transfer price. Yes, you can say that. Okay. All right. You want to note down this example or we'll go to the provisions? Sir, yeah, 2 minutes. Sorry. Sir, almost done. Just 2 minutes. Hmm.
Done, sir. Okay. Okay, let us understand the transfer pricing provisions that when such provisions are made applicable. Hmm. First of all, there has to be an international transaction. Secondly, such transaction is between two or more associated enterprise. Either or both of them are non-residents. Thirdly, such international transaction can be in the nature of. Now, this is important. कि international transactions में क्या हो सकता है? One is purchase, sale, or lease of tangible and intangible property. So it will include both purchase, sale, leasing of the asset, whether it is tangible or intangible, then providing services, receiving services, lending money or borrowing money. Huh? But in all the situation, you have to understand that there should be loss of revenue to tax department. Then only these provisions are made applicable. Hmm. Any other transaction having a bearing on profit, income, losses, or assets of such enterprise. So this last point, it means that if at all I'm dealing with a party wherein I'm sharing the losses or I'm sharing the profit, so in that case, in case I am sharing the losses, नहीं बोल सकते उसको, कॉमन कॉस्ट, जब भी हम लोग कॉमन कॉस्ट डिवाइड करते हैं तो उस केस में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ड ऑन देयर यूसेज द कॉस्ट शुड बी अपोर्शन्ड, नॉट बेस्ड ऑन द टैक्स रेट कि कौन से कंट्री में कितना टैक्स रेट है उसके हिसाब से आपको डिवाइड नहीं करना है. यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू हाउ मच profit, sorry, how much is the utilization of a specific service. Accordingly, the common cost should be divided. Similarly, when it's a joint venture agreement कि तीन चार entities एक साथ joint venture transaction कर रहे हैं तो हर एक का share of profit भी उसी तरीके से आना चाहिए. It should not be adjusted profit according to the tax rates. Further, such transaction may involve, allocation or apportionment of contribution to any cost expenses incurred in connection with the benefit, service or facility. Now, बहुत बार ऐसा होता है जो common facilities हैं, like the administrative department or the server facility or internet connection, ये जो common facilities है वो head office सबके लिए expenses incur करता है या फिर group companies के लिए. तो in that case, the cost allocation will be done on a reasonable basis. That should be done on actual basis and not on the basis of how means which country have to show more profit or which country have to show less profit. Not according to that. Then such international transaction must be done at arm's length price. And if such transaction has been done at less than arm's length price, it shall require determination of income or appropriation of cost or expenses on the basis of arm's length price. तो उसको ये basis पे आपको divide करके arm's length price compute करना पड़ेगा. The above adjustment should either result in an increase of income or decrease of loss returned by the assessee. In other words, the adjustment should not have the effect of reducing the income chargeable to tax or increasing the losses. तो लॉस कम करने के लिए या फिर प्रॉफिट सॉरी लॉस बढ़ाने के लिए या फिर प्रॉफिट कम करने के लिए प्राइस एडजस्टमेंट्स नहीं होना चाहिए. हाँ, अभी ये सब देखने के बाद हमें मेनली पार्ट देखना है कि व्हाट इज द arm's length price and what is associated enterprise. Now, arm's length price they have defined in a very short and sweet words. The arm's length price is the price which is applied or it is proposed to be applied in transaction between persons other than A's in an uncontrolled condition. मतलब मैं किसी भी पार्टी के साथ which is not an associated enterprise, I'm dealing in an uncontrolled conditions. Then what would have been the price? That is nothing but the arm's length price. उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे कि ये मेरा arm's length price है. अभी जब भी हम लोग ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि कौन सा प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस आएगा या फिर कौन सा प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें दो चीज देखना है. एक तो एम आई डीलिंग विद एसोसिएट एंटरप्राइज. इफ यस, देन is it an then it should not be considered. So I should consider that if I'm dealing with unrelated party,
then what would be the price? That is what we have to consider. That is point number one. Point number two, we are dealing in an uncontrolled conditions. Uncontrolled conditions matlab kya? Which is not being controlled by any other uh, factors like controlling interest or shareholding or board of directors. ऐसा कोई भी control नहीं होना चाहिए for determining the price. Accordingly, you will decide what is the arm's length price for a particular situation. I'll give you an example. Suppose I am a dealer of a book. So suppose I am dealing with certain books. Uska price है 100 rupees per book. Now, suppose there is a person entered my shop which is unknown person. So obviously he will ask me what is the price of the book. I will say, okay, its price is 100 rupees. So I'll give the book for 100 rupees, and then he will pay 100 rupees, he will go off. Now, suppose he is saying ki, please offer me some discount. So I'll say, no, I can't offer you a discount. But he says, I'm going to purchase 4,000 books from you. So if a person is purchasing 4,000 books from me, is it likely that I will offer him some discount? Yes. Yes. हाँ, तो उस केस में सपोज मैंने उसको जो 100 का प्रोडक्ट था मैंने उसको ऑफर किया 95 में. हाँ, तो सपोज प्राइस ऑफ द बुक इज 100. सिंस ही इज परचेसिंग इन बल्क क्वांटिटी, तो मैंने उसको 5 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर दिया एंड मैंने उसको क्या किया 95 में वो बुक ऑफर किया. डज इट मीन मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस 100 से बदल के 95 हो गया? No. नो, इट विल रिमेन 100. ओनली थिंग इज उसने बल्क में परचेज किया, इसके लिए मैंने उसको डिस्काउंट ऑफर किया. हाँ, डज इट मीन कि चलो मैंने 95 लिख दिया, अभी मैं बोलूंगा सबके लिए, मैंने अभी रिलेटेड पार्टी के साथ डील किया तो भी मैं 95 में ही डील करूंगा. इज दैट पॉइंट वैलिड? No, I should deal with unrelated parties still at which price? 100 rupees, because that price is unknown price. So that party was unknown party जिसको मैंने 100 में ऑफर किया था, उसने बल्क में परचेज किया, इसके लिए मैंने डिस्काउंट दिया. नाउ सपोज ग्रुप कंसर्न है, मतलब मेरा कोई ग्रुप एंटरप्राइज है या मेरा सब्सिडरी कंपनी है, उसने भी 5,000 का ऑर्डर दिया एंड मैंने उसको 95 प्राइस चार्ज किया, देन इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज again I'm giving them or offering them a bulk price discount, so that is acceptable. But in general अगर related party and उसको उसने एक ही कॉपी परचेज किया मैंने उसको 95 में बेचा, then it is not that. तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. Are you getting this? Then another party came in my shop and the party is wealthy rich and I can see that party can pay any amount of money. And that party came out from BMW. तो BMW से वो पार्टी आ गया बाहर, उसने पूछा आपके पास बुक है क्या? मैंने बुक दिखाया तो उसने पूछा प्राइस कितना है, तो मैंने बोला इस बुक का प्राइस है 120. तो उसने 120 दे दिया, वो निकल गया. अभी किसी एक पार्टी को मैंने ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया, तो विल माय आर्म्स लेंथ प्राइस चेंज? No, sir. No, it will remain 100. In exceptional cases, I'm charging them extra price because I know that that customer can afford to pay 120. So I'm charging them 120. So that doesn't disturb my arm's length price. Now, why I'm giving these examples is because practically आप देखोगे तो बहुत बार bargaining shops में या फिर certain situations में ऐसा होता है कि वो price में बहुत differences होता है. And accordingly, you cannot even imagine what was the original price and at which price you are now dealing with. So वहां पे बहुत differential रहेगा. Like especially girls will be aware that when they are purchasing at Linking Road or certain areas, shopping areas where they bargain and then they discount the price to a greater extent. Like personally, I have experienced this. Like when I was uh, going with my friends, so they were just like three of us were there, 3 or 4 of us were there, and a couple of girls were also there. So they entered the shop and they were planning to get a purse, and that shopkeeper said purse ka price kuch 1200 1300 बोल.
एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो डिस्काउंट करके मांगेंगे तो मे बी 100-200 रुपया 1000 रुपीज तक मांगेंगे, एंड दे स्टार्टेड विद सेइंग कि ऑफ लाइक भैया 250 में दे दो, एंड बोथ ऑफ अस वर रियली शॉक टू सी कि 1200 का पर्स कोई 250 में मांगता है कि, तो हमें लगा कि अभी शॉपकीपर गाली देगा, हम लोग चुपचाप बाहर आ गए, एंड देन वी ऑब्जर्व दैट दे एंड अप परचेसिंग पर्स एट सम 300 odd rupees. हाँ, नाउ यू कैन इमेजिन कि 1200 का प्रोडक्ट 300 रुपए में उन्होंने बेच दिया. सो अगर कोई बार्गेन नहीं करता, लाइक सपोज वी वेर देयर कि एंड हम लोग बार्गेन नहीं करते, तो वी वुड हैव परचेज्ड एट मे बी 1000 rupees ऑल्सो. कोई फॉरेनर रहता तो उसको 1500 में भी बेचते. तो सेम प्रोडक्ट आप इतने प्राइस रेंज में सेल कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि हर एक प्राइस आपको आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रीट करना है. तो यहाँ पे जो एक जनरल प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस. एंड ये जो प्राइस वेरिएशंस है उसी के लिए डिपार्टमेंट ने कंसेप्ट भी लाया है कि जहाँ पे इतना प्राइस वेरिएशंस रहेगा वहां पे वो क्या करते हैं, रेंज कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं. रेंज कॉन्सेप्ट मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग ओनली वन प्राइस एंड आर्म्स लेंथ प्राइस, वेरिएशन के टाइम वो एक रेंज डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रहेगा तो उसको हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रीट करेंगे. सो दे डिसाइड अ प्राइस रेंज फॉर these kind of product where the product is sold to different customers at a different price. All right, यहाँ तक समझ में आया. देन एक पर्सन आया, उसने पूछा कि बुक का प्राइस कितना है. मैं बोला 100. तो उसने बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए. तो मैं बोला कि नहीं भाई, एक बुक के लिए तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. देन ही टुक आउट गन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड आई सेड कि उसने पूछा अभी कितना प्राइस. मैं बोला नहीं, इट इज फ्री फॉर यू. एंड मैंने उसको फ्री में बुक दे दिया. हाँ, तो यहाँ पे अगर मैंने उसको फ्री में बुक दे दिया, डज इट मीन कि प्राइस ऑफ द बुक इज 0? नो. यहाँ पे क्या था, इट वाज अ कंट्रोल्ड कंडीशन. गन देख के मेरा प्राइस बदल गया. So that is how I have changed the price because of certain event or circumstances wherein I am changing the price because of certain control imposed by the other party. अभी गन का तो मैंने hypothetical example दिया, but practically कैसे होता है when दो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम है, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, या फिर एक कंपनी ने दूसरे को लोन दिया रहेगा, तो उस केस में दे आस्क द प्रोडक्ट फॉर अ डिफरेंट प्राइस. एंड ऑब्वियसली वहां पे आप जो रेगुलर प्राइस चल रहा है उसके अलावा कोई और प्राइस पे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो इसके लिए what they are trying to say is if there is some kind of control which has been established by the two enterprises, they will be termed as means they will be termed as associated enterprise, and then that price will not be considered as arm's length price, which will be arm's length price when you're dealing with an unrelated party. बट अभी ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से केस में कंट्रोल है, कौन से केस में कंट्रोल नहीं है, या फिर कौन सा पार्टी ए ही है, कौन सा पार्टी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है? तो उसके लिए हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज का. डेफिनेशन थोड़ा छोटा है, so you can see it starts from here. It starts from here and it will continue till here. So सिर्फ 11-12 पॉइंट्स है डेफिनेशन में. तो ये डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो अभी हमने डिस्कस किया था आर्म्स लेंथ प्राइस कि ये किस तरीके से होगा. तो व्हेन आई एम डीलिंग विद एनी पर्सन अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज and I'm dealing at uncontrolled conditions, then that price will be termed as a arm's length price. अभी arm's length price निकालने के अलग अलग तरीके हैं. There are some methods of determining arm's length price. One is comparable uncontrolled price, then a resale price method, then cost price method, profit split method, then transactional net margin method. तो ये पांचों मेथड है, या फिर एनी अदर मेथड विच इज प्रिस्क्राइब बाय द टैक्स डिपार्टमेंट. सो वो अभी तक कुछ नया मेथड उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया. तो ये 5 मेथड में आपको एक तो थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर दे कैन आस्क यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और दे कैन आस्क यू इन फिल इन द ब्लैंक्स की या एमसीक्यूज में, जैसे कि यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस कितना होगा, या फिर प्राइस एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम, ईदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन. प्रैक्टिकल्स तो हम लोग करेंगे क्लास में. तो ये 5 मेथड हम लोग देखेंगे वन बाय वन.
बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज, विच इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. इसके ऊपर भी आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन व्हाट इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. The term associated enterprise means an enterprise which participates directly or indirectly through one or more of its intermediaries in the management, control or capital of the other enterprise. कि जहाँ पे एक enterprise दूसरे enterprise के मैनेजमेंट, कंट्रोल या कैपिटल में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज. Then in respect of which one or more persons who participates directly or indirectly or through one or more of its intermediaries in the management, control and capital of are the same persons who participates directly or indirectly in the other company. तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ के जो मैनेजर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं. तो वन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंट्रोलिंग अदर, सो देन बोथ आर कंसिडर्ड टू बी एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज. बट ये और एलैबोरेटली डिफाइन करने के लिए उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स दिया है. तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं. Two enterprise shall be deemed to be an associated enterprise in the previous year if, first point, one enterprise holds directly or indirectly shares carrying not less than 26% of the voting power in the other enterprise. मतलब जहाँ पे एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में 26% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे दैट दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. Then any person or enterprise, now this is important कि ये सब पॉइंट्स है ना आपको याद रखना पड़ेगा. एक तो इसके ऊपर जैसे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोला वैसे भी पूछ सकते हैं, या फिर इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स दे डायरेक्टली आस्क यू अ क्वेश्चन. 5-6 मार्क का क्वेश्चन था. दे गिव यू वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड then they will ask you to consider, then they will ask you to consider कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं है. दैट इज व्हाट वाज द क्वेश्चन. तो 4-5 ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ में से प्रोविजन अप्लाई करना था कि वेदर टू एंटरप्राइजेस विल बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज और अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज. तो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दो कंपनीज हैं. तो दो कंपनीज में एक कंपनी दूसरे कंपनी में लेट अस से 50% शेयर होल्डिंग कर रही. तो 50% शेयर होल्डिंग कर रहा है मतलब मोर देन 26% हो गया. तो ए एंड बी क्या होगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा. देन सेकेंड कंडीशन, any person or enterprise holds directly or indirectly shares carrying not less than 26% of voting power in each such enterprise. देखो यहाँ पे क्या होगा, ए एक कॉमन पर्सन है जिसने बी में 26% होल्ड किया है. तो मिस्टर ए एंड बी क्या हो गया, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया. बराबर. देन सी में उसका 30% वोटिंग है. तो ए एंड सी लिमिटेड भी क्या हो गया, एसोसिएट एंटरप्राइज हो. एंड यू नो मैथमेटिकल इक्वेशन 1 is equal to 2, 2 is equal to 3. तो 1 is equal to 3 हो जाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं इवन बी एंड सी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज. आर यू गेटिंग दिस? Third point, a loan is advanced by one enterprise to the other enterprise constitute not less than 51% of the book value of the total assets of the other company. For example,
ए लिमिटेड का एसेट्स है 100 lakhs एंड अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज में कितना हुआ, 56% हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे 51% से कितना भी ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, दीज टू एंटरप्राइजेस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ऑलराइट, next is one enterprise guarantees not less than 10% of the total borrowing of the other enterprise. ए का बैंक लोन भी है, इसमें से सी लिमिटेड इज गारंटर बैंक लोन का 50% का गारंटी सी लिमिटेड ने दिया है। हाँ? तो अभी रूल क्या है, वन एंटरप्राइज इज गारंटिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग। तो उनका टोटल बोरोइंग का 10% से ज्यादा, उनका टोटल बोरोइंग कितना हुआ, 76 lakhs हो। तो 76 लाख का 10% से ज्यादा उन्होंने क्या किया है, सी लिमिटेड ने गारंटी दिया है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड नेचुरली उसी कनेक्शन में एसी एसोसिएट है, ए बी एसोसिएट है, तो एसी भी सॉरी बीसी भी क्या होगा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। Okay, then more than half of board of directors or members of governing board or one or more executive directors are appointed by the other enterprise. मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेजोरिटी मतलब कितना भी, मेजोरिटी मतलब 51% भी मेजोरिटी होगा। तो दे हैव क्लियर, मतलब दे हैव मेड इट क्लियर कि इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ more than 10%. So more than two-thirds of board of directors are appointed by uh, by the governing board or more executives or executive members of one enterprises are appointed by the other enterprise. तो A limited का board of directors 5 है, उसमें से 4 अपॉइंट किया B limited। तो हम लोग A and B को क्या ट्रीट करेंगे, एसोसिएट ट्रीट करेंगे। On similar lines, there is point number 6. More than half of board of directors or members or governing board of one or more of the executive directors or members of each of the two enterprises are appointed by the same person or persons. हाँ? तो same person या persons ने क्या किया, ये दूसरे कंपनी का board of directors को appoint किया। Then manufacture or processing of goods or articles or business carried out by enterprise is wholly dependent on use of know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or business or commercial rights of similar nature, or data documentation, drawing, specification relating to patent, invention, model, design, secret formula, which the other enterprise is owner or in respect of which the other enterprise has exclusive rights. हाँ? अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिपेंडिंग ऑन सम फॉर्मूला और पेटेंट ऑफ द अदर एंटरप्राइज। सो फॉर एग्जांपल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग electronic motor vehicle, but for which the design is obtained EMV मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल। ए लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल जिसका डिजाइन उन्होंने ऑब्टेन किया बी लिमिटेड, एंड बी लिमिटेड विच हैज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ डिजाइन। अभी इस केस में
without B limited permission, can I manufacture the electronic motor vehicle? No, because उनके पास exclusive rights है वो EMB का डिजाइन करने का, स्ट्रक्चर करने का. तो उस केस में even though B limited has given me permission to use that design, but अगर उन्होंने कल वो डिजाइन विड्रॉ कर दिया तो can I manufacture that electronic motor vehicle? No. Huh? So my business, you can say it is indirectly depending on the approval of B Limited, because my business is able to function because of the design from B Limited. So naturally there can be a control which is imposed by B Limited on A Limited. Now directly नहीं है, but indirectly they can impose a control. वो बोल सकते हैं कल कि ये प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्राइस पे ही आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा. So those conditions and terms may intervene between both the parties. All right. Next point is 90% or more of raw material consumables required or the manufacturing process. Manufacture or processing of the goods carried out by one enterprise is supplied by the other enterprise. So suppose A Limited का total production होता है 10 lakh units. हाँ, उसमें से 9,50,000 units they sell it to Reliance. तो ऑब्वियसली उनका मेजॉरिटी स्टेक किसके पास गया, दूसरे के पास गया. हाँ, सो उन वो जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उनका प्रोसेसिंग में से 90% से ज्यादा, सॉरी मैंने उल्टा बोला. फॉर एग्जांपल एक कंपनी को टोटल रॉ मटेरियल लग रहा है 10 लाख यूनिट्स, उसमें से 9,50,000 यूनिट्स उनको रिलायंस ने सप्लाई कर दिया. तो रिलायंस ने अगर सप्लाई कर दिया तो ऑलमोस्ट 95% मटेरियल रिलायंस से आ रहा है. तो कल रिलायंस के साथ कुछ पंगा हो गया तो रिलायंस बोलेगा आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई यू एनी मटेरियल. तो अगर उन्होंने मटेरियल का सप्लाई बंद कर दिया तो ऑब्वियसली माय बिजनेस विल गेट अफेक्टेड, बिकॉज 90% से ज्यादा मेरा मटेरियल या कंज्यूमेबल्स किस कंपनी से आ रहा है, दूसरे कंपनी से आ रहा है, रिलायंस से आ रहा है. तो इसके लिए हम लोग ट्रीट करेंगे कि दिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज a transaction between associated enterprise. तो एक कंपनी का 90% से ज्यादा रॉ मटेरियल दूसरे से सप्लाई हुआ तो वो दोनों एंटरप्राइजेस को हम लोग ट्रीट करेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज. यहाँ तक का सब पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर. यस. हाँ, तो देखो हार्ड नहीं है, बट ये आपको थोड़ा आप एग्जांपल्स दिमाग में रखोगे ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा कि ये एंटरप्राइज ये दो एसोसिएट है, लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तभी आपको वो लिंक लगा के फिर आगे आंसर निकालना पड़ेगा. ओके, देन गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड to the other enterprise or person specified the other enterprise, and the prices and other terms conditions are influenced by such other enterprise. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दूसरे को मटेरियल सप्लाई करता हूँ, मैं सप्लाई तो करता हूँ लेकिन मुझे देख भाई तुझे ये प्राइस पे ही आगे बेचना पड़ेगा, नहीं तो मैं सप्लाई नहीं करूँगा. तो ऑब्वियसली दूसरे का टर्म्स कंडीशंस अगर एक कंपनी डिक्टेट कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज दिस पर्टिकुलर केस इज कंट्रोल्ड कंडीशन. Then where one enterprise is controlled by an individual and the other enterprise is also controlled by such individual relative or jointly by the individual and relative of such individual. हाँ, अभी आप मूवीज में, सीरियल्स में या किधर देखते रहोगे कि बहुत बार ऐसे होता है कि दो फ्रेंड्स रहेंगे, बिजनेसमैन है, तो एक फ्रेंड का किसी के साथ पंगा हो गया तो वो बोलेगा दूसरे फ्रेंड को कि देख भाई तू इसके साथ डील नहीं करने का, करेगा तो दोस्ती खत्म. हाँ, so this is an indirect way of influencing the other party that you cannot carry out a transaction, or you can carry out a transaction with a specific party, and that is the reason why they will be considered to be an associated enterprise to each other. And secondly, individual का relative भी होता है, like husband is like husband is supplying material to एक enterprise, फिर उसकी वाइफ इज सप्लाइंग मटेरियल टू द अदर एंटरप्राइज. सो उस केस में क्या होगा कि वो एंटरप्राइज हस्बैंड एंड वाइफ इनके थ्रू जो प्राइस मतलब एक दूसरे के बीच में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है तो वहां पे प्राइस एडजस्टमेंट्स हो सकता है. तो इसके लिए
ये जो ट्रांजैक्शंस का या कंट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहां पे अगर फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी आप कंट्रोल कर रहे हो तो भी हम लोग उसको एसोसिएट एंटरप्राइज के डेफिनेशन में डाल देंगे. Then where one enterprise is controlled by HUF and the other enterprise is controlled by member of such HUF or by the relative member of such HUF or jointly by such member or his relative. तो ऐसा करते हैं कि लोग, मैं एक कंपनी को लेट अस से मैं ए लिमिटेड में 26% होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं और ए लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज हो, बराबर. अभी HUF, मेरा HUF अगर डील कर रहा है ए लिमिटेड से, तो ऑब्वियसली वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज मैं HUF का करता हूँ एंड मैंने ए लिमिटेड में 26% होल्ड किया है, तो ऑब्वियसली HUF इज been indirectly controlled by the Karta, and then Karta is also holding shares in another company. So it is a like it's a relationship between three enterprises. So these three enterprises will be considered as the associated enterprise. Now this is another important part where one enterprise is firm, AOP or BOI. The other enterprise hold not less than 10% shares or interest in the firm AOP or BOI. मतलब 10% से ज्यादा जिनका प्रॉफिट शेयरिंग है, वो सभी एंटरप्राइजेस एसोसिएट एंटरप्राइज के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे. Then there exists between two enterprises any relationship of mutual interest as may be prescribed. It may be noted that rules 10A to 10E do not refer to any of the relationship of mutual interest. तो अभी तक उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया नहीं है. तो अभी तक हम लोगों ने जो ये 10-12 ट्रांजैक्शन देखा, इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हो तो वो दो एंटरप्राइजेस को हम लोग ट्रीट करेंगे कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है. एंड एसोसिएट एंटरप्राइज होना सफिशिएंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ट्रांजैक्शन should be carried out at an arm's length price. And if it is not an arm's length price, then you will have to do the price adjustment. Okay, international transaction हमने ऊपर देखा था स्टार्टिंग में कि it is relating to supply of goods or purchase of goods, then supply of services or receipt of services, giving loan, giving asset on lease basis, taking asset on lease basis, or sharing common cost or sharing common profit. So that way it will be considered as a international transaction. Okay. Deemed international transaction. Now, where in respect of transaction entered into by enterprise with a person other than A, there exists a prior agreement in relation to the relevant transaction between the person and the associate enterprise. हाँ, मतलब मैं एक enterprise के साथ deal कर रहा हूँ, भले ही वो unrelated party है, but हमारे बीच का transaction है because of original agreement with the associate enterprise. Where the terms of the relevant transactions are determined in substance between such other person and associated enterprise. Yes, and either the enterprise or associate enterprise or both of them are non-residents. Then such transaction entered into between the parties and the other person shall be deemed to be an international transaction entered into between 2A whether or not such other person is non-resident. तो इस केस में कैसे होता है, सपोज मेरा एक कोई नॉन रेसिडेंट पार्टी है तो मैंने उसके साथ डायरेक्टली डील किया तो एडजस्ट मतलब तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो what we do is we don't directly transact with the foreign party, we deal through this intermediary by way of making an agreement. हाँ, तो वो एग्रीमेंट बना के हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली आर्म्स लेंथ प्राइस सॉरी इनडायरेक्टली एडजस्टेड प्राइस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, बट सिंस वी आर रूटिंग थ्रू एन अनरिलेटेड पार्टी तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस में नहीं आता ऐसा हमें लगता है. बट अगर ये बिकॉज ऑफ सम प्रायर एग्रीमेंट या प्रायर अरेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे कि दिस विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन that these enterprises will also be considered as associated enterprises. Okay. Now,
we have to understand. Okay, यहाँ पे एक example भी दिया है. If A Limited is an Indian company has entered into an agreement for sale of product X to Mr. B, an unrelated party, and Mr. B has entered into an agreement for sale of the product X with C Incorporation, a non-resident entity, which is specified foreign company in relation to A Limited, then transaction between A and B also shall be deemed to be an international transaction entered between two associated enterprise, irrespective of whether B is a resident or a non-resident. हाँ, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को सिर्फ रूटिंग कर रहे हैं. हाँ, कि डायरेक्टली डील किया तो समझ में आएगा, इसके लिए इनडायरेक्टली हम डीलिंग विद सच ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. अभी हम लोग इतना देर बोल रहे हैं कि प्राइस एडजस्टमेंट, बट प्राइस एडजस्टमेंट एग्जैक्टली कभी करेंगे, तो उसके लिए सर्टन सिचुएशंस हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जांपल आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस, कि आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस आया अपने एग्जांपल में 25 लाख एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 20 लाख, तो दैट मींस मैंने कम प्राइस पे सेल किया, तो ऑब्वियसली उस केस में प्राइस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. एंड दोनों का डिफरेंस हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, सॉरी, दोनों के डिफरेंस को हम लोग ट्रीट करेंगे इट इज अ इनकम. बट अगर उल्टा हुआ कि आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस 20 लाख है एंड मैंने उसको 25 लाख में बेचा या 26 लाख में बेचा, तो उस केस में देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू टैक्स डिपार्टमेंट, सो प्राइस एडजस्टमेंट नहीं आएगा. देन आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस इज मोर देन एक्चुअल परचेज प्राइस. तो एक्चुअल परचेज प्राइस है आपका 10 एंड आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस है 12 रुपए. अभी ये केस में डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपने प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे परचेज किया है, लोअर देन द मार्केट प्राइस. सो ऑब्वियसली वहां पे डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लेगा ही नहीं, बिकॉज आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया. तो उसके लिए हम लोग ट्रीट करेंगे कि ये this transaction is to be considered as not liable for arm's length price adjustment. लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा हुआ कि जहां पे मेरा आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस इज लेस देन एक्चुअल परचेज प्राइस, देन ये दोनों का डिफरेंस हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस डिसअलाउड करके ट्रीट करेंगे, दैट वुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. देन आर्म्स लेंथ इनकम, कोई भी इनकम रहे, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई भी इनकम ट्रीट करो फॉर दैट मैटर, वो जो इनकम है, आर्म्स लेंथ इनकम इज मोर देन एक्चुअल इनकम, then you are required to do the price adjustment. Difference will be treated as income, and same rule applies for arm's length expenses is less than the actual expenses, then you are required to do the price adjustment. And difference कितना रहेगा, ये दोनों के बीच का difference will be treated as an expense which is disallowed. तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से केसेस में प्राइस एडजस्टमेंट्स होगा एंड कौन से केसेस में प्राइस एडजस्टमेंट्स नहीं होगा. अभी ये अभी तक का हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो किसके लिए किया, कि कौन से सिचुएशन में हमें प्राइस एडजस्टमेंट करना है एंड कौन से सिचुएशन में प्राइस एडजस्टमेंट नहीं करना है. लेकिन जब भी हम लोग बोलते हैं कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस है, तो उसके पीछे बेसिस क्या है और हाउ टू डिसाइड अ स्पेसिफिक प्राइस एज आर्म्स लेंथ प्राइस. तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए, as we have discussed that there are certain methods for determining arm's length price. So there are 5 methods which has been prescribed by the income tax department. So पहले हम लोग एक एक मेथड देखते हैं एंड उसके साथ उसके सम्स भी देखते हैं, so that you can be well versed with different types of with different methods of determining the arm's length price. अभी यहाँ पे पहला मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. Now do one thing, quickly read the contents of this method, then I'll give you an example, and वो example के साथ हम लोग क्या करते हैं फिर, I'll explain you how the comparable and uncontrolled price method is applicable, and then we will do the adjustments with the practical questions on this. तो quickly एक बार check करो comparable uncontrolled price.
ओके, देख लिया। तो comparable uncontrolled price method, which is also popularly known as cup method, which is followed in many of the instances or cases, because this is a method wherein we are going to compare two different transactions. Like if I'm dealing with related party, what is the price? If I'm dealing with unrelated party, then what is the price? Now see, when I'm supplying goods or receiving goods, in both cases you can apply this method, because sorry, when I'm dealing with a customer who is associate enterprise, then I will determine what is my arm's length selling price. कि associate से deal किया तो selling price कितना आएगा, non associate से deal किया तो selling price कितना आएगा, and accordingly हम लोग decide करेंगे कि प्राइजेस कितना होगा, मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस दोनों के लिए हम लोग कितना चार्ज करेंगे. सो दैट वुड बी अ डिटर्मिनिंग फैक्टर, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड. Under this method, the price is charged or paid for any comparable uncontrolled transaction. मतलब हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे कि अगर मैं सपोज यूके में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो यूके में प्रोडक्ट बेचना हो तो मैं कितने प्राइस में सेल करता हूँ, तो लेट अस से 1 लाख. एंड अगर मैं रिलेटेड पार्टी के साथ डील कर रहा हूँ तो मैं उसको कितने प्राइस में डील करता हूँ, 80,000. हाँ, अभी ये दोनों का डिफरेंस है. इसका रीजन होल एंड सोल ये एसोसिएट है या अनएसोसिएट है ऐसा नहीं होता. There are other contributing factors also, because terms and conditions for both these parties would not be one and the same. दोनों का terms condition अलग अलग हो सकता है. तो अगर दोनों का terms and condition अलग अलग है, there is a possibility that because of those terms and condition दोनों के बीच का price क्या होगा, अलग अलग होगा. तो since the price for both the parties charge is different, we have to first of all adjust the uh, differences between the international transaction and comparable uncontrolled transaction. दोनों के बीच का जो differences है वो हमें adjust करना पड़ेगा. Differences मतलब क्या, तो usually it happens that when I'm dealing with related party तो उसको गारंटी या वारंटी देना नहीं पड़ता अलग से, because then will say अगर कुछ डिफेक्ट हो गया मुझे वापस दे दो, मैं रिपेयर करके दे दूंगा या फिर रिप्लेस करके दे दूंगा. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अनरिलेटेड पार्टी तो तभी ऐसा नहीं होगा. अनरिलेटेड पार्टी बोलेगा कि नहीं, मुझे गारंटी चाहिए कि अगर कुछ हो गया तो तुम मुझे रिप्लेस करके दोगी या नया प्रोडक्ट दोगी या फिर फ्री उसको रिपेयर करके मुझे वापस दोगी. तो ये गारंटी प्रोवाइड करने का कॉस्ट नेचुरली एक्स्ट्रा होगा. तो ऑब्वियसली दैट कॉस्ट आई विल नॉट चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस, बट आई विल ऐड टू द सेलिंग प्राइस. कि मेरा अगर अनरिलेटेड पार्टी मुझसे गारंटी मांग रहा है 1.5 साल का, तो 1.5 साल के लिए उसको प्रोसेस करना है, उसको पार्ट को रिप्लेस करके देना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. तो उसको हम लोग क्वांटिफाई करेंगे कि उसके लिए कॉस्ट कितना आएगा, एंड अकॉर्डिंगली विल चार्ज दैट कॉस्ट टू द अदर पार्टी, एंड दैट वुड बी टर्म्ड एज एडजस्टमेंट इन द प्राइसेस. अभी ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जहाँ पे दोनों के प्राइस में डिफरेंस हो सकता है. लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में रिलेटेड पार्टी को पूरा उसके गोडाउन तक पहुंचा देता हूँ माल, लेकिन अनरिलेटेड पार्टी को सिर्फ मैं एयरपोर्ट तक ही पहुंचा तो उसके आगे वो डिलीवरी लेते. तो दैट इज द डिफरेंस. ऑब्वियसली अगर ये दोनों का डिफरेंस है टर्म्स कंडीशन में तो उनके प्राइसेस में भी डिफरेंस रहेगा. तो हम लोग ये सब differences को adjust करते जाएंगे. There will be other differences like bulk quantity, bulk purchase, then how much credit period is offered, then whether cost insurance freight, like insurance and freight charges are incurred by me or the other party, then what is the tenure in which I am liable for giving the guarantee or warranty, then what are the other after sale services provided. तो ये जो सब फैक्टर्स है वो सब फैक्टर्स के लिए हमें प्राइस एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा. वो एडजस्टमेंट करने के बाद हमें आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस या फिर आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस निकालना है. एंड वो प्राइस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर माय ट्रांजैक्शन इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट. तो हमेशा याद रखो, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए हम लोग बेस प्राइस कौन सा लेंगे, रिलेटेड पार्टी का या अनरिलेटेड पार्टी का. I'll repeat my question. To determine arm's length price, what should be my basis?
मैं अनरिलेटेड पार्टी के प्राइस को बेस पकड़ूंगा या रिलेटेड प्राइस को ही बेस पकड़ूंगा? रिलेटेड। ओके, आर्म्स लेंथ प्राइस मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ? रिलेटेड पार्टी के लिए, अनरिलेटेड पार्टी के लिए? रिलेटेड। हाँ, तो अगर मैं रिलेटेड पार्टी के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहा हूँ, मैंने रिलेटेड पार्टी से ही स्टार्ट किया, तो कैन आई फाइंड आउट द आर्म्स लेंथ प्राइस? नो। नो, तो मुझे स्टार्ट किधर से करना पड़ेगा? अनरिलेटेड। अनरिलेटेड। हाँ, तो अनरिलेटेड प्राइस को सपोज मैंने 1 लाख चार्ज किया, जैसे मेरे एग्जांपल में 1 लाख मैंने अनरिलेटेड को चार्ज किया, रिलेटेड को 80,000 चार्ज किया, तो आई विल स्टार्ट विद 1 लाख। हाँ, उसमें मैं प्लस माइनस करते जाऊंगा एंड आई विल डिटरमाइन व्हाट इज द फाइनल प्राइस। हाँ, तो मैंने उसको प्लस माइनस करके फाइनल प्राइस है 85,000, तो मैं बोलूंगा कि 85,000 इज आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस। फिर आई विल कंपेयर विद द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना था? 80,000, तो मैंने 5,000 कम चार्ज किया, तो ये 5,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। तो इनकम में क्या होगा आपका? 5,000 से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा पर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको उतना मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। राइट? आ रहा है समझ में? तो अभी हम लोग इसका सम लेते हैं। ओके, एक काम करो, यहाँ पे ना ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सोनी जापान एंड वाई लिमिटेड का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़ो। मीनवाइल आई विल ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से मूव हो रहा है बिटवीन टू पार्टीज, एंड देन विल सी हाउ द सम is required to be solved. Read question number 1.
Can you see this now? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया अभी? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे है देखो. Y Limited is Indian company which is dealing with Sony Japan and LG Korea, and इसमें से Sony Japan is associated enterprise and LG Korea is non-associated enterprise. अभी दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? 1,20,000 मोबाइल उसने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेच दिया एट द रेट ऑफ 2,000 एंड एलजी कोरिया को 20,000 मोबाइल बेच दिया एट द रेट ऑफ 3,200. टर्म्स कंडीशंस क्या क्या है? तो अपने ग्रुप एंटरप्राइजेस को उसने एफओबी पे प्राइस मतलब फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे उसने बिलिंग किया, उसने उसको वारंटी प्रोवाइड नहीं किया एंड बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर किया 50 रुपीज का. इसने सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट एक्स्ट्रा चार्ज किया 300 रुपीज का, फ्री वारंटी प्रोवाइड किया 350 रुपीज का एंड डिस्काउंट ऑफर नहीं किया. तो अभी हमें डिटरमाइन करना है व्हाट इज आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस फॉर सोनी जापान. तो वो आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अभी आपको ट्रांजैक्शन तो समझ में आएगा दोनों पार्टीज के बीच का. आर यू क्लियर विद द ट्रांजैक्शन? Yes. यस. अभी हमें कैलकुलेट कर मतलब अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है व्हाट इज द आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस टू एलजी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा या सोनी जापान स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा? LG. LG. यस, बिकॉज एलजी कोरिया इज अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज. तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि मैं उसको कितने में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ. आई एम सेलिंग देम मोबाइल फॉर 3,200. तो मैं एसोसिएट को कौन से प्राइस पे सेल करूंगा? तो हमें क्या करना है? प्लस एंड माइनस एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस करना है. अभी पहला एडजस्टमेंट क्या है? मैंने सोनी जापान को मतलब ग्रुप कंसर्न को एफओबी पे बेसिस पे बिलिंग किया एंड इसको सीआईएफ पे बिलिंग कर दिया. नेचुरली इसको कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट एक्स्ट्रा लगाया 300 रुपया, तो उसका सेलिंग प्राइस बढ़ ही जाएगा उतना. राइट, डू यू एग्री? तो अगर 300 रुपए से एक्स्ट्रा चार्ज किया है तो मैंने अगर एफओबी बेसिस पे मेरे ग्रुप कंसर्न को चार्ज किया तो नेचुरली आई विल चार्ज देम लोअर अमाउंट. तो मुझे ये 300 रुपए को क्या करना पड़ेगा? ऐड या लेस? Less, na? लेस, करेक्ट. लेस फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर नॉन एई और पेड फॉर एलजी. कितना है? 300 रुपीज. सर लेस क्यों करेंगे? नहीं समझा वो. देखो, अगर मैं एफओबी पे चार्ज कर मतलब इंश्योरेंस एंड फ्रेट में इनकर कर रहा हूँ एलजी के लिए, तो मैं उसको सेलिंग प्राइस में बढ़ा दूंगा. हाँ. तो फॉर एग्जांपल 1,000 रुपी को मैं सेल कर रहा हूँ दोनों को. किस किस को? सोनी को भी 1,000 में बेच रहा हूँ एंड एलजी को भी बेच रहा हूँ. अभी एलजी ने बोला कि इंश्योरेंस फ्रेट चाहिए, तो मैं उसको 1,000 में ही बेचूंगा क्या प्रोडक्ट? नहीं. नो, मैं ज्यादा 300 ऐड कर दूंगा. तो उसके लिए प्राइस कितना होगा? 1,000. सॉरी, उसके लिए प्राइस कितना होगा? 1,300. डू यू एग्री? यस. तो हमें सोनी के प्राइस निकालने के लिए 300 क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. गॉट इट? हाँ सर. अभी दूसरा केस, दिस वाज फॉर सीआईएफ. दूसरा जो है उसने वारंटी प्रोवाइड किया. किसको? एलजी को प्रोवाइड किया. उसका प्राइस है 350, लेकिन वो वारंटी उसने सोनी को प्रोवाइड नहीं किया. तो नेचुरली एलजी को मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा. डू यू एग्री? यस. हाँ. तो अगर मुझे एलजी से सोने की प्राइस पे आना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? यस. यस. क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने दूसरे के लिए इनकर किया है तो मेरा सेलिंग प्राइस उतना बढ़ते गया. तो अगर मुझे ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए आना है तो उतना प्राइस मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करते जाना पड़ेगा. इन शॉर्ट, फैसिलिटीज विच आर नॉट प्रोवाइडेड टू ए, उतना कॉस्ट में क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा.
वारंटी कॉस्ट और LG। अंडरस्टूड? अभी तीसरा पॉइंट, पहला तो सबको समझ में आया। यस सर। हाँ हम्म, सर। अभी Yes, sir. तीसरा पॉइंट जो है, डिस्काउंट ऑफर्ड टू सोनी जापान। मतलब मैंने सोनी जापान को बल्क में डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो ये मैं ऐसे ही 1000 रुपये ऐसे ही एग्जाम्पल करके ले रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डिस्काउंट दिया तो क्या होगा मुझे बताओ। डिस्काउंट देना ये रॉन्ग है क्या कुछ इसमें? ऑफरिंग बल्क परचेज डिस्काउंट। अभी देखो 20,000 की जगह पे 1,20,000 परचेज किया तो आप डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे? विल गिव। देंगे। यू विल गिव डिस्काउंट। एंड अगर डिस्काउंट दिया 50 sir. रुपया तो सोनी का प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. यस। तो अगर मैं LG के प्राइस को बेस पकड़ रहा हूं तो मुझे 50 क्या करना पड़ेगा? Add back करना पड़ेगा। LG के प्राइस को मैं बेसिस पकड़ रहा हूं एंड मुझे सोनी के प्राइस पे आना है तो क्या कर ये प्राइस सेल प्राइस ये कौन सा बेसिस है मेरा? LG का बेसिस है या सोनी का बेसिस है? LG। 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 हाँ, एंड LG से मुझे सोनी के प्राइस पे आना है तो ये 50 को ऐड करूंगा या लेस करूंगा? 1000 प्राइस 1000 रुपी को मैंने बेस पकड़ा। हाँ, तो विल आई सेल टू सोनी जापान एट 1000 रुपीज ओनली? नो। नो, मैं क्या करूंगा 50 कम करके उसको कितने में बेचूंगा? 950। 950 में। तो ये 50 रुपीज क्या होना चाहिए? ऐड। नहीं, अरे अब भी मैंने इधर आप लेस बोलते हैं, Less, इधर sir. ऐड कैसे होगा? हाँ सर। हाँ सर। गॉट इट। देखो, अगर एक सिंपल एग्जांपल लो, आप एसोसिएट एंटरप्राइज एंड मैं अनएसोसिएट को डील कर रहा हूँ 1000 एंड आपको मैं बल्क में आप परचेज कर इसके लिए आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं अगर 1000 रुपी को बेस पकड़ा तो आपका प्राइस 1000 से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होगा। कम होना चाहिए ना। हम्म। तो मुझे वो डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। टू सोनी फॉर बल्क परचेज लेस 50, दैट्स इट। हाँ, अभी ये तीनों एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या आएगा? 700 लेस कर दिया तो आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2500 होगा। अभी अगर आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस 2500 है, हाँ, तो मुझे उसमें मतलब फाइनल प्राइस एडजस्टमेंट्स कितना करना पड़ेगा मुझे? एक्चुअल हाँ, पहले निकालते हैं आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस कितना है। आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस कितना है? 1,20,000 इनटू कितना आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस? 2500। 2500। yes so 1,20,000 into 2,500 so आ गया sorry, 3 नहीं 30 करोड़। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। कितना है? तो इनकम एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा?
इनकम कितने से बढ़ाना पड़ेगा आपका 6 करोड़ से। तो एडजस्टमेंट इन इनकम कितना आएगा 6 करोड़ का आएगा एंड आपका आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस कितना आएगा 2500। ऑलराइट, तो कभी भी आंसर निकालते दिमाग में एक पॉइंट रखो कि अगर मैं अनरिलेटेड से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई हैव टू डिटरमिन व्हाट इज द प्राइस फॉर रिलेटेड एंटरप्राइज, देन एट विच प्राइस आई विल डील विद। तो उसके लिए हम लोगों को बेस पकड़ना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस टू अनरिलेटेड एंटरप्राइज, प्लस माइनस करके हम लोग निकालेंगे रिलेटेड पार्टी को कितने में हम लोग सेल करेंगे। ऑलराइट, Yes, sir. तो आंसर में आपका ये पार्ट एंड ये पार्ट कंपलसरी है। हाँ? सिर्फ ये जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करके रखो। अभी आई विल सजेस्ट आप ड्रॉ करके रखो सो दैट देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में। एग्जाम में आपने नहीं निकाला तो भी चलेगा, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन होगा देन इट इज गुड टू ड्रॉ दिस स्मॉल डायग्राम सो दैट यू विल बी क्लियर कि दोनों का टर्म्स कंडीशन क्या है, कौन एई है कौन नॉन एई है। चलो ये तो छोटा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ऐसे आएगा जहाँ पे 4-5 पार्टी रहेगा, तो तभी तो बेटर इज ड्रॉ द डायग्राम सो दैट यू विल क्लियर कि किसका किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन। सर हाँ सर इसमें नेट नेट 500 का प्राइस एडजस्टमेंट किया है, 500 इंटू 120 किया तो इंक्रीज इन प्राइस 6 करोड़। यस, चलेगा, वैसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम।
हो गया? No, sir. समझ में आया ना? लेकिन हाँ सर. Done, sir. डन. तो फर्स्ट मेथड सबको समझ में आया? As to how we are determining arm's length price in case of cup method. Yes, Yes, sir. sir. अभी सेकंड मेथड जो है वो है रीसेल प्राइस मेथड. आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ रीसेल प्राइस मेथड एंड देन हम लोग उसका सम्स जो है वो कल से स्टार्ट करते हैं. बट कोई भी मेथड में जैसे यहाँ पे कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड था तो हम लोगों ने दो अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर किया and then we decided what should be the arm's length selling price in this particular case. But not necessarily हमेशा arm's length selling price रहेगा. Sometimes it can be reverse the case also. They can ask you what is the arm's length purchase price also. तो उस केस में हमें arm's length purchase price निकालना पड़ेगा by using cup method. तो वहां पे देंगे purchase details from associate enterprise, purchase detail from unassociated enterprise, right? तो वैसे भी cup method का question आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट मेथड है रीसेल प्राइस मेथड. तो रीसेल प्राइस मेथड में क्या होगा? देयर विल बी अ प्रॉफिट मार्जिन व्हिच वी हैव टू डिसाइड और व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट कंसीडरिंग द रीसेल. अभी रीसेल मतलब क्या? द पर्सन हु इज अ ट्रेडर. ट्रेडर क्या करता है हमेशा? ही विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम एक्स पार्टी, लेट अस से 100. he will add his margin, let us say 10%. So 10 rupees and then he will decide what is the selling price. Correct? अभी ये डिसाइड करने के बाद यही ट्रांजैक्शन अगर मैं एसोसिएट के साथ करूं या अनएसोसिएट के साथ करूं, अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए. और टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, जो रीसेल का प्रॉफिट परसेंटेज है परचेज फ्रॉम वन पार्टी एंड सेलिंग इट टू अनदर पार्टी, वहां पे मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अभी के केस में क्या था? इधर आई वाज डिटरमिनिंग सेलिंग प्राइस और आई वाज डिटरमिनिंग परचेज प्राइस. बट रीसेल प्राइस मेथड में क्या होगा? आई विल चेक व्हाट इज माय ओवरऑल प्रॉफिट एडिशन व्हेन आई एम परचेसिंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट टू अदर पार्टी. तो ये जो मार्जिन है वो अगर सेम रहना चाहिए तो एसोसिएट एंटरप्राइज आने के बाद मैं उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करता हूँ. एंड अगर मैंने एडजस्टमेंट किया उससे इज देयर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू टू टैक्स डिपार्टमेंट? दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. But that for that purpose we have to first fix up what is the resale profit margin, and the same margin should be there whether I'm selling it to associate enterprise or whether I'm purchasing it from associate enterprise. अभी यहाँ पे आपको दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. एक तो मैं रिलेटेड से बाय करूं एंड अनरिलेटेड को बेचूं तो आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा, या फिर मैं अनरिलेटेड से बाय करूं एंड रिलेटेड को सेल करूं, वहां पे भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए. अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड व्हाट शुड बी द प्राइस. हमेशा याद रखो अगर मैं परचेज कर रहा हूं फ्रॉम ए तो मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? सेलिंग प्राइस. मैंने रीसेल में कितने में बेचा?
एंड बैकवर्ड कैलकुलेशन करके मैं परचेज प्राइस निकालूंगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेल कर रहा हूँ एसोसिएट एंटरप्राइज को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड वर्किंग करना पड़ेगा, मींस परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन, देन आई विल चेक वेदर इट इज मैचिंग विद द सेलिंग प्राइस और नॉट। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड द आर्म्स लेंथ सेलिंग प्राइस। So that calculation we have to do in case of resale price method. But how to identify resale? In resale price method, आपको clearly दिया रहेगा that I am purchasing product from one party and selling it to another party. In that case, you will be using the resale price method. अब ये method का sum कैसे आएगा, वो कैसे deal करना है, that calculation will check in tomorrow's lecture because वहां पे आपको ट्रांजैक्शन और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 4 या 5 पार्टीज रहेगा कि मैंने एसोसिएट से परचेज किया, अनएसोसिएट को सेल किया, फिर अनरिलेटेड से बाय किया, अनरिलेटेड को सेल किया, तो वो आपका मार्जिन रहेगा, वही मार्जिन आपको रिलेटेड पार्टी के साथ अप्लाई करना है। अब ये कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो हम लोग कल के लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज एंड फर्स्ट मेथड दैट इज कप मेथड। होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस टिल नाउ। Yes, sir. Are you Yes, finding sir. it easy? Yes, till now at least. Yes. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ये चैप्टर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग पे। तो डू दिस चैप्टर वेल सो दैट एग्जामिनेशन में जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का 25-30 मार्क्स का पार्ट रहेगा तो उसमें कम से कम आपको 22 से 25 तक मार्क्स मिलना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन थ्योरी रहेगा तो आई एम जस्ट डिडक्टिंग फ्यू मार्क्स, बट देन आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 24 या 25 तक आपका स्कोर जाएगा तो आपको टैक्स स्कोर करने में अच्छा पेपर रहेगा। ओके, तो कल हम लोग सेकेंड मेथड देखते, रीसेल प्राइस मेथड एंड सब्सिक्वेंट मेथड एंड उसके सम्स देखते। ऑलराइट।